Good morning, students. Hope you'll be fine at your respective places. Today, we are going to start a new topic that is the decomposers in ecosystem. Let us first try to define the term decomposition. अगर हम कहेंगे it is the process या decomposition is the process by which complex organic compounds are broken down into simpler and inorganic substances. Now, what we mean by the term decomposition, we can say decomposition. Decomposition is simply the process. It is the process by which the complex organic compounds they are broken down into simpler and inorganic substances, and then these inorganic substances they can be reutilized, they can be reused by the plants for their growth. Now, this process of decomposition it also provides two things, that is the energy and second one is the nutrients. The process of decomposition it provides two things. First one is the energy, second one is the nutrients to the decomposers. Those decomposers they include, इसमें कौन कौन से आते हैं? We can have the bacteria, we can have the fungi. So this whole process of decomposition it provides two substances, two things. First one is the energy, second one is the nutrients to the decomposers, and those decomposers they are bacteria, they are fungi. Now, different organic compounds are decomposed at different rates. सो हम ये कहेंगे जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दे आर बीइंग डिकम्पोज्ड एट डिफरेंट रेट्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं. वी हैव गॉट द कार्बोहाइड्रेट्स, वी हैव गॉट द फैट्स, वी हैव गॉट द प्रोटीन. दे आर we can say decomposed rather quickly, they are decomposed rapidly, they are जो हम उनमें देखेंगे जो decomposition rate है उनकी कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की या प्रोटीन्स की, that is very much high. while as compounds हमारे पास कुछ और compounds हैं. we have got the cellulose. अगर हम बात कर लेंगे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की, अगर हम बात कर लेंगे फैट्स की, अगर हम बात कर लेंगे प्रोटीन्स की, इनमें हम देखेंगे दे गेट डिकम्पोज्ड रैपिडली, जल्दी जल्दी. अब हम दूसरी बात कर लेंगे. वी हैव गॉट सेल्यूलोज, वी हैव गॉट लिग्निन, वी हैव गॉट व्हाट वी कॉल एज द काइटिन, वी हैव गॉट हियर या वी हैव गॉट बोन्स. जहाँ पर हम कहेंगे जो डिकम्पोज्ड रेट है दैट इज स्लो, they get decomposed slow. Now whole the process of जो हमारे पास decomposition की है it is a complex process, it is not a simpler process, it is a complex process and it involves various steps, it involves various processes. And this whole process of decomposition की अगर हम बात कर लेंगे it is a complex process, it is not a simpler process, it is a complex process of enzymatic reactions. और इसमें हम क्या देखते हैं कि जो भी प्रोसेस हो जाते हैं दे आर द स्टेप वाइज रादर they take place, there takes place the stepwise degradation of detritus, detritus, that is these dead we can say the organic matter
या हम कहेंगे dead plants and animals, or what we will see, these detritus, they act as the raw materials for the whole process of decomposition. So whole process of this decomposition, it is a very slow process, it is a complex process, जहाँ पर हम ये देखेंगे, there we will see the enzymatic degradation जो होते हैं, enzymatic reaction जो होती है, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि that here we will see it involves simply the stepwise degradation of the detritus, that is the dead organic matter that involves the dead bodies of plants and animals. दूसरी बात हम यहाँ कहेंगे, जो it whole process of the decomposition, it takes place in various steps. फर्स्ट स्टेप अगर हम इसमें देखेंगे, व्हाट इज दैट, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, व्हाट इज द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन किसका, दिस रॉ मटेरियल. व्हाट इज दिस रॉ मटेरियल, इट इज द detritus, and this takes place by means of this fragmentation by means of detritivores. ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे फंगई आते हैं, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, या इवन कि उसमें कुछ इनवर्टेब्रेट्स भी आते हैं, लाइक दैट ऑफ अर्थवर्म. सो फर्स्ट स्टेप जो है, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन, एंड दिस फ्रेगमेंटेशन किसका हो जाता है, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन ऑफ दिस detritus, and this fragmentation takes place by means of detritivores organisms like bacteria, like fungi, like some invertebrates, like we have got this earthworms. Now what is the main purpose of this fragmentation, that it simply increases the surface area of, it increases the surface area, kiska, surface area of detritus particles, that's the dead plants and animals, for microbial action. Microbial action. So main purpose of this, जो main इसका है this fragmentation का, that it simply increases the surface area of किसका, detritus particles, so that detritus particles for this microbial action. What we will see, these detrivorous and detritivorous organism जो हैं, they also add certain growth substances as which stimulates the microbial growth. दूसरा स्टेप अगर हम देखेंगे, that is the leaching. फर्स्ट स्टेप इज फ्रेगमेंटेशन, सेकंड इज द लीचिंग. व्हाट इज दिस लीचिंग, लीचिंग में हम क्या देखते हैं, इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस ऐसी होती है बाय विच द सिंपल, या हम कहेंगे वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स लाइक sugars, like inorganic substances, inorganic nutrients या substances, like जो हमारे पास है, we have got magnesium etc, they move downwards along with the what we call as they seeps rather downwards. Then these inorganic nutrients are precipitated to form non-available salts. लीचिंग में क्या हो जाती है, इट इज़ द प्रोसेस, एक ऐसी अमल है बाय विच द सिंपल एंड वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स लाइक सिंपल शुगर्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक मैग्नीशियम, आयरन एटसेट्रा, दे मूव डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द soil along and downwards, they seeps underground, and these inorganic nutrients are then precipitated to form non-available salts. थर्ड जो प्रोसेस आते हैं, that is the catabolism. अब इस प्रोसेस में क्या हो जाती है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो रिलीज करते हैं एंजाइम्स. कौन सा एंजाइम्स, which are extracellular, that are found outside their cell. They release extracellular enzymes into their surroundings to break down detritus. किसको वो break up कर लेंगे, detritus into simpler substances, into simple organic compounds and inorganic substances.
to break down detritus into simple organic compounds and simple inorganic substances. What happens in the catabolism? In this process of catabolism, जो decomposers होते हैं, decomposers they release extracellular enzymes in their surroundings in order to break down the detritus into simple organic and inorganic substances. फोर्थ जो हमारे पास स्टेप इसमें आता है दैट इज ह्यूमिफिकेशन. व्हाट हैपन्स इन दिस प्रोसेस? जो हमारे पास सिंप्लीफाइड डिट्राइट्स जो होता है, जो हमारे पास सिंप्लीफाइड डिट्राइट्स होते हैं, दे गेट चेंज्ड इनटू डार्क कलर्ड substance, and that dark colored substance is called as humus. Humification में क्या हो जाती है? It is this process in which the simplified detritus is changed into dark colored substance called humus. This humus अगर हम बात करेंगे, it is highly resistant to microbial action. This humus is highly resistant to microbial action and it undergoes decomposition at a very slow rate. ह्यूमिफिकेशन में क्या हो जाती है? इन विच वी विल, इट इज द प्रोसेस बाय विच सिंप्लीफाइड detritus it changed into the dark colored substance which is called as the humus, and this humus is highly resistant to the microbial growth. So that हम क्या देखेंगे? So that जो हम देखेंगे जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है, डिकम्पोजिशन रेट जो है, इट इज वेरी स्लो. इसमें हम ये भी एक ऐड कर सकते हैं कि दैट दिस ह्यूमस इट इज द रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. लास्ट जो हमारे पास आते हैं एक और, दैट इज कॉल्ड एज द मिनरलाइजेशन. मिनरलाइजेशन क्या हो जाती है? यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, दे गेट रिलीज्ड. इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक वाटर, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या और nutrients from the humus into the soil by some microbes. अब mineralization में क्या हो जाती है? It involves the release of inorganic substances like carbon dioxide, like water and other nutrients, for example calcium, magnesium, potassium, from the humus into the soil by some microbes. So what is the importance of this decomposition की हम सिंपली बात कर लेंगे. इट रिलीजेज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर. जो डिकम्पोजिशन होती है, इट सिंपली रिलीजेज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर. एंड दिस होल प्रोसेस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर ये प्रोसेस नहीं हो जाएंगी, फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे दे वुड बी टाइड अप इन द डेड बॉडीज, वो बंद ही रह जाएंगे. और हम ये कहेंगे कि जो न्यू लाइफ होगी, जो न्यू ऑर्गेनिज्म होंगे, दे विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड. नाउ देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. नाउ what are the various factors जो हमारे पास हैं this whole process of decomposition की? they can be categorized into two categories factors. एक हम बोलेंगे we have got climatic factors. पहले हम वही डिस्कस कर लेंगे. climatic factors में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2-3 हैं और दूसरा हमारे पास क्लाइमेटिक फैक्टर दूसरा हमारे पास है, दैट इज द केमिकल क्वालिटी ऑफ डिट्राइटस. पहले हम डिस्कस कर लेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स की. क्लाइमेटिक फैक्टर्स हमारे पास 2-3 है. फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर.
टेम्परेचर को ये कहा गया इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग द डिकम्पोजिशन रेट। ये देखा गया है कि वो इलाके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहाँ पर हम देखेंगे टेम्परेचर इज़ मोर देन द 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या जहाँ पर मॉइस्चर देखेंगे वहाँ पर जो डिकम्पोशन हो जाती है दैट इज़ वेरी मच रैपिड एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द उन इलाकों में जो हम कहेंगे उन इलाकों में जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा दैट इज़ ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन है दैट इज़ वेरी मच हाई, वाइल एज इन केस ऑफ दोज एरिया। हाँ, यहाँ पर हम देखें टेम्परेचर इन ट्रॉपिकल एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्ट कंडीशंस, और मॉइस्ट कंडीशंस का भी याद रखना। वाइल एज इट इज़ वेरी मच लो इन द रीजन्स, फॉर एग्जाम्पल इन हाई ऑल्टीट्यूड जहाँ पर हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, दैट इज़ लेस देन 8, 9, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पर मॉइस्चर सफिशेंट मॉइस्चर भी होगा, सेटल देन जो डिकम्पोजिशन रेट होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि डिकम्पोजिशन इट कैन टेक ईयर्स। सेकंड वन, सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर की अगर हम बात करेंगे, जो डिकम्पोजिशन रेट होगी इट इज़ वेरी मच लो इन दैट सॉइल विच हैज़ गॉट लो मॉइस्चर। अगर हम बात कर लेंगे डेजर्ट्स की, एंड वहाँ पर हम देखते हैं कि इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स देयर इज़ द लो डिकम्पोजिशन रेट, कि वहाँ अगर वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है, लेकिन दूसरा इफेक्ट वहाँ पर है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत कम है, सॉइल मॉइस्चर वो कम है, टेम्परेचर इज़ देयर वेरी मच हाई लेकिन सॉइल मॉइस्चर है दैट इज़ वेरी मच लेस। सो हम वहाँ पर ये कहते हैं कि वहाँ पर हमें देख सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रेट है वो बहुत कम है। थर्ड, ऑक्सीजन। अब डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करेंगे इट इज़ एन ऑक्सीजन डिपेंडेंट या ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। सो हम कहेंगे अगर एनारोबियोसिस हो गया, अगर हम देखेंगे एनारोबिक कंडीशन होंगी, वहाँ पर हम देखेंगे दैट इट स्लोज डाउन द डिकम्पोजिशन रेट, वहाँ पर डिकम्पोजिशन ज़्यादा नहीं हो जाती है। वहाँ पर क्या हो जाती है, देयर टेक्स प्लेस द एक्यूमुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। दीज वर द सम कैलेमिटी फैक्टर। अब जो हमारे पास केमिकल क्वालिटी है डिट्यूरियस की, वो हमारे पास क्या है, अब जो क्वालिटी है डिट्यूरियस की ये हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? इट इज डिटरमाइंड बाय relative proportions of water soluble substances. So chemical quality of detritus, it is determined by relative proportion of water soluble substance. ये कहा गया है कि अगर लिग्निन होगा या काइटिन होगा इट डिक्रीजेज द डिकम्पोजिशन रेट, लेकिन अगर ये देखा गया है व्हेन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे, दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। गोया प्रेजेंस ऑफ जो क्वालिटी होगी, अगर इसमें लिग्निन होगा ज़्यादा, अगर इसमें काइटिन ज़्यादा होगा, अगर इसमें होगा दैट डिक्रीजेस द, वहाँ पर हम देखेंगे कि जो डिकम्पोजिशन रेट होगी वो बहुत कम होगी। अगर वहाँ पर अब नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे, दे विल इंक्रीज द रेट ऑफ द what we call as this decomposition. So today we have discussed what we call as the decomposition, what are the processes. उस process में हमने पढ़ा कि that there are the 5 main these processes. First one is the fragmentation, second one is the leaching, third there is the catabolism, fourth one we have studied the humidification, fifth one is the mineralization. There are some factors also which influence the process of this decomposition, and those can be categorized into 2 factors. First one is the calamity factor, second one is the chemical quality. Calamity factors में we have got the temperature. Temperature में देखें when there is the high temperature and high moist condition, जो rate of decomposition वो ज़्यादा होगी,
as compared to those where the temperature is very low. Soil moisture is also necessary for अगर temperature ज़्यादा भी होगा लेकिन soil moisture कम होगा वहाँ पर हम देखेंगे कि डिकम्पोशन रेट वो बहुत कम होगी. फोर्थ वन इज द ऑक्सीजन. सिंस डिकम्पोशन इज लार्जरली ऑक्सीजन डिपेंडेंट रिएक्शन, अगर हम देखेंगे कि अगर एनारोबिक कंडीशंस भी होंगे वहाँ पर हमें देखेंगे जो डिकम्पोशन रेट होगी वो बहुत कम होगी. देन देयर वी विल सी देयर विल बी द एक्यूमुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. अब जो केमिकल क्वालिटी होगी, अगर ये देखा गया है केमिकल क्वालिटी में कि अगर लिग्निन या काइटिन सब्सटेंस होंगे दे डिक्रीज द व्हाट वी कॉल एज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, while as the presence of nitrogen containing या water soluble substance they increases the rate of decomposition. That is all for today. Tomorrow we will try to discuss another topic, that is the productivity in an ecosystem. Until then, goodbye. God bless you. Thanks.